friends, so welcome to our channel The India Reads. हाँ जी guys, तो our channel is working as a NGO for to providing education for the needy people. So as you know that our topic is going on tenses, and in my previous videos we have discussed about simple present, simple past and simple future. After that we have discussed present continuous, past continuous and future continuous. After that we have discussed present perfect, past perfect, and today we are going to discuss about future perfect. So let's start. So guys, perhaps you have kept this thing in your mind that in present perfect tense the symptoms are चुका है, चुकी है, चुके हैं, and in past perfect tense symptoms means the words to which you come to know that it's a past perfect word, or you can say that reco words वो क्या थे, रहा था, रही थी, रहे थे. तो now we are going to start future perfect tense. तो इसकी रेको के लिए भी सिमिलरली मैं आपको उसी तरह से 3 वर्ड्स बताऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. तो वर्ड कौन से होंगे? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे. तो सी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. ओके हाँ जी गाइस, तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इन एनी परफेक्ट टेंस ऑलवेज वी विल यूज थर्ड वर्ब. तो एज यू नो दैट इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी हैव टू यूज हैज, हैव प्लस थर्ड वर्ब, and in with singular thing we have to use has, and with plural things we have to use had. Like same in past perfect tense we have to use had whether it's singular or it's plural, but we have to use had but same verb, third verb. In this tense we have to use will have, shall have plus verb, you know which verb, third verb. हाँ जी, same rules will be there. With I and we you can use shall have, and with others you will use will have. But if you want to ignore this thing, then with all things you can use will have plus third verb. So as you know that every tense have further 3 types. First is positive or affirmative, second is negative, and third is interrogative. Ends with the question mark sign. Okay? हाँ जी. तो firstly we are going to discuss about positive or affirmative. Like with I or we can use shall have, and with others will have. But if we want to ignore shall have, then with all things we can use will have plus third verb. तो firstly we are going to start positive. हाँ जी. वह अपना पाठ याद कर चुके होंगे. चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे. वह अपना पाठ याद कर चुके होंगे. हाँ जी. तो वह की इंग्लिश क्या हो गई? दे. दे विल हैव याद कर चुके होंगे. लर्न, लर्न, लर्न. थर्ड वर्ब इज लर्न. दे विल हैव लर्न, वह अपना पाठ याद कर चुके होंगे. तो दे विल हैव अपना पाठ की क्या होगी? दियर लेसन. दे विल हैव लर्न दियर लेसन, वह अपना पाठ याद कर चुके होंगे. हाँ जी. आगे सीता पत्र लिख चुकी होगी. सीता पत्र लिख चुकी होगी. सीता will have write, wrote, written. सीता will have
खेल चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव, खेलने की इंग्लिश क्या होगी? प्लेयर। चिल्ड्रन विल हैव प्लेयर्ड फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। जैसे कि इन सबके पीछे वही रेपो वाले वर्ड आ रहे हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। लाइक वह अपना पाठ याद कर चुके होंगे, सीता पत्र लिख चुकी होगी, बच्चे फुटबॉल खेल चुके होंगे। These all examples related to future perfect or this type is known as positive type. Now we are going to discuss about negative. See, will, have. In between these both words we have to use not, like will not have and shall not have. Plus third verb, same thing, but rules will be remain same. If you want to ignore shall, then you can use only will not have and plus third verb. It's a rules of negative. Like वह अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा, या राम अपना काम खत्म नहीं कर चुका होगा। राम will not have completed, Ram will not have completed his work. Okay? वह मंदिर नहीं जा चुके होंगे, वह खाना नहीं खा चुके होंगे, वह पत्थर नहीं लिख चुकी होगी, वह फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। These all examples related to negative. Now we are going to discuss about interrogative. See, use will, shall before subject plus have after subject plus third verb plus question mark at the end. Means guys, हम ये जो will have है, shall have है, वो interrogative में कभी भी इकट्ठा यूज नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होगा? यूज will shall before subject। सब्जेक्ट से पहले हमें लगाना होगा या विल या शैल, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको देख के लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना होगा हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड। क्या वह बाजार जा चुका होगा? ठीक है, पहले बैक इंग्लिश लिखते हैं ही। क्या वह बाजार जा चुका होगा? अब हम देखेंगे कि विल यूज होगा कि शैल, तो क्या यूज होगा? विल। क्या वह बाजार जा चुका होगा? विल ही। अब मैंने क्या कहा था? अपना सब्जेक्ट क्या है जी? ही। तो मैंने क्या कहा था? यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट। तो अपना सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। तो उसके आगे क्या आ गया? विल। तो हमने क्या करना है? क्या वह मंदिर जा चुका होगा? विल ही हैव। क्या वह मंदिर जा चुका होगा? क्या वह अपना पाठ याद कर चुका होगा? एन एग्जाम्पल वी कैन टेक। क्या वह मंदिर जा चुका होगा? विल ही हैव। तो जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो, वेंट, गॉन। तो विल ही हैव गॉन टू टेम्पल। ओके, क्वेश्चन मार्क। क्या वह मंदिर जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू टेम्पल। तो मैंने क्या कहा था? यूज विल शैल बिफोर सब्जेक्ट। तो अपना सब्जेक्ट क्या था? ही। तो हमने क्या किया? ही के साथ शैल यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? विल। विल ही। उसके बाद मैंने बोला हैव आफ्टर सब्जेक्ट। तो ये अपना सब्जेक्ट था, तो हैव कहाँ पर लगा? सब्जेक्ट के बाद। तो विल ही हैव, उसके बाद हमने ले ली थर्ड वर्ब। विल ही हैव गॉन टू टेम्पल। क्या सीता पत्र लिख चुकी होगी? हाँ जी, क्या सीता पत्र लिख चुकी होगी? Will सीता have, हाँ जी, will सीता have written a letter।
क्या सीता पत्र लिख चुकी होगी? विल सीता हैव रिटन अ लेटर? हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर आके हमारा ये जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है वो खत्म होता है. आई रियली होप दैट यू अंडरस्टूड दिस, बट as you know that when three tense is completed, then at last I always make a chart or you can say table for you. तो like फर्स्ट जो फर्स्ट टेबल था वो हमने बनाया था सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का. जो सेकंड टेबल था वो मैंने बनाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का. एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ टेबल related to present perfect, past perfect and future perfect. So let's see table. हाँ जी, तो see guys, तो फर्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हाँ जी, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट पॉजिटिव. इट्स पॉजिटिव एंड इट्स पॉजिटिव. हाँ जी, तो रेको के लिए वर्ड्स कौन कौन से बताए थे मैंने यहाँ पे आपको? चुका है, चुकी है, चुके हैं. ओके फाइन. हाँ जी, यहाँ पर मैंने कौन से वर्ड बताए थे? चुका था, चुकी थी, चुके थे. Got it? यहाँ पर हमने कौन से वर्ड डिस्कस किए? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे. हाँ, तो फर्स्टली ये इसकी रेको के लिए वर्ड है, ये इसकी रेको के लिए वर्ड है और ये इसकी रेको के लिए वर्ड है. अब हम देखेंगे भाई इसमें यूज क्या होता है. इसमें यूज होता है हैज, हैव. बट वन थिंग ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट कोई भी परफेक्ट आ जाए, एनी परफेक्ट, वी हैव टू ऑलवेज यूज थर्ड वर्ब. तो हैज, हैव प्लस थर्ड वर्ब. हियर वी विल यूज हैड प्लस थर्ड वर्ब. तो हियर वी विल यूज विल हैव, शैल हैव, will have, shall have plus third verb. हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था with singular things like he, she, it, any name, किसी का भी नेम आ जाए, हाँ जी, मेल का, फीमेल का, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? has. and we, you, they, I, with these things we will use have, and with these both things third verb. हाँ जी, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है फ्रेंड्स. whether it's plural, whether it's singular, we have to use only have. और इसकी कंडीशंस भी हम अभी आज ही हमने डिस्कस की है. आए हुए के साथ आप लोग shall have यूज कर सकते हो, and with others we have to use will have. Verb will be remain same. हाँ जी, now it's a negative, negative, it's a negative. हाँ जी, तो नेगेटिव में गाइस हमने क्या करना होता है? यू नो बेटर. हैज नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड वर्ब. हैड नॉट प्लस थर्ड वर्ब. इन दोनों के मिड में क्या लगा देंगे? between have, sorry not, will not have and shall not have. will not have and shall not have plus third verb. हाँ जी, नेक्स्ट आ गया
interrogative, हाँ जी, तो इसमें हमने क्या करना है, यूज हैज, हैव बिफोर सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड. Okay, same, use had before subject plus third verb plus question mark at the end. हाँ जी, तो here we have to use will, shall before subject plus have after subject plus third verb plus question mark at the end. हाँ जी, तो guys today we have completed our 9 tenses: simple present, simple past, simple future, then past continuous, present continuous and future continuous, then present perfect, past perfect and future perfect. And in my next videos we will discuss about present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. And friends, हम आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं. फ्यूचर में आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स, हैंडमेड नोट्स, वीडियोस, सब कुछ आपको पहुंचाया जाएगा. अगर आप चाहते हो कि आपको ये एजुकेशन हम इसी तरह से प्रोवाइड करते रहे, तो गाइस ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा आप लोगों की सपोर्ट से, बिकॉज वी आर वर्किंग एज अ NGO to providing education for the needy people. So guys, if you really like my video, please must subscribe our channel and also share with friends. Thanks. Have a nice